بہت بدقسمتی کی بات ہے اور کہ کہیں بھی منارٹیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، منارٹیز کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ قابل مذمت ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں جو منارٹیز رہتی ہیں وہ میجارٹی کی مرضی پہ ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ عمر صاحب شاید اب بی جے پی کی پالیسیز کے کافی قریب ہوں۔ ایوری تھنگ از پاسبل ان پالیٹکس، یہ ہسٹری ہے۔ عمر صاحب بی جے پی کی سرکار میں وزیر خارجہ رہ چکے ہیں اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ عمر صاحب کو بی جے پی سے کوئی اتنی زیادہ نفرت ہے۔ انہیں زمین اپروو کروا دیجیے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس سال ڈگری والے۔ ہمارے ساتھ اس وقت مہمان ہیں چودھری ذوالفقار علی، سابق وزیر و جموں کشمیر بھارتیہ جنتا پارٹی کے نائب صدر ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے۔ اس وقت بنگال کے اندر جو بنگلہ دیش کے اندر جو اس وقت انسیڈنٹ اور وہاں پر جو مائنارٹی کمیونٹیز کے اوپر کہیں نہ کہیں تشدد بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن اس حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے اور ساتھ میں جموں کشمیر کے معاملے کو لے کے بھی کچھ سوال جو ہے وہ رہیں گے۔ تو صاحب کیا کہنا چاہیں گے جو اس وقت بنگلہ دیش کے اندر جو حالات جو وہ بنے؟ بہت بدقسمتی کی بات ہے اور کہ کہیں بھی منارٹیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، منارٹیز کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ قابل مذمت ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں جو منارٹیز رہتی ہیں وہ میجارٹی کی مرضی پہ ہوتی ہے اور میجارٹی کا یہ تحفظ حق ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ منارٹیز کو تحفظ دے، نہ کہ منارٹیز پہ زور زبردستی زیادتی کی جائے۔ اور بدقسمتی کی بات ہے کہ بنگلہ دیش جیسا ملک، اس ملک کو بنانے میں ہندوستان نے ایک بہت کلیدی رول ادا کیا ہے، اور ایسے ملک میں جس طریقے سے واقعہ رونما ہوا ہے، ہم اس واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم حکومت بنگلہ دیش سے گزارش بھی کرتے ہیں اور حکومت ہند سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ یقینی بنائیں بنگلہ دیش میں جو منارٹیز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، زیادتی کو بند کیا جائے۔ اور ہم وہیں کے لیے نہیں کہتے بلکہ ہم ہر اس ملک میں کہتے ہیں جس ملک میں منارٹیز کے ساتھ زیادتی ہو، کسی بھی طرح کی زیادتی ہو، دھرم کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، ذات کے نام پہ، علاقہ کے نام پہ جو زیادتیاں ہیں، ہم اس کو پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہماری یہی مختلف ممالک کی حکومتوں سے یہی درخواست رہے گی کہ منارٹیز کو تحفظ فراہم کیا جائے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، اور یہ قابل مذمت ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ سر، بہار میں نتیش کمار کا جو ایک رویہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا جہاں پہ لیڈیز ڈاکٹر کو اپوائنٹمنٹ دینے کے لیے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے وہاں پہ ایک میڈیا نمائندے کی جانب سے باضابطہ طور پر ایک مسلم لیڈیز کو جب بیرون ریاست کے اندر ایک فون کال کر کے کہا، ماحول خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جانب سے باضابطہ طور پر یہ کہا گیا، پاکستان میڈیا کو یہ جواب دیا گیا کہ یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، یہاں پر ہندو مسلم اگر کوئی بات ہے تو یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، یہ اس کی جانب سے پاکستان کو جواب دیا گیا۔ لیکن کبھی کبھار لگتا نہیں ہے کہ یہاں پر جو مسلم کمیونٹی ہے کہیں بات جو ہے وہ ٹارگٹ کی ہوتی ہے، لیکن دشمن ملک کو جواب دینا، ہمارے مسلمانوں کا ایک اس طرح سے ایک عورت کا یہ جواب دینا کتنا اس کی کس طرح سے مانتے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو کوئی اخلاقی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ ہمارے ہندوستان کے معاملات میں مداخلت کرے، اور جموں کشمیر کے ریاست کے لوگوں نے بہت خمیازہ بھگتا ہے 1947 سے لے کے ابھی تک، جو پاکستان کی مہربانیاں جموں کشمیر کے لوگوں پہ رہی ہیں، اور ہمیں پاکستان کی کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہندوستان میں اپنی مرضی سے رہے ہیں اور ہندوستان میں ہم بائی کنوکشن ہیں، بائی کمٹمنٹ ہیں، اب بائی فورس نہیں ہے۔ اور ہندوستان میں جو بھی ہے، ہمارا سنویدھان، ہمارا آئین ہمیں یہ تحفظ دیتا ہے کہ ہماری مذہبی آزادی، ہمارا کھان پان، ہمارا پہننا، یہ ہماری مذہبی آزادی، یہ سب تمام چیزیں ہیں، یہ ہندوستان کے آئین کی فنڈامنٹل رائٹس میں آرٹیکل 25 ہمیں یہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جوڈیشری، یہ ہندوستان وہ ہے جہاں پہ انصاف ملتا ہے لوگوں کو،
यहाँ ये मुल्क वो है जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब को अदालतों में खड़ा होना, ये मुल्क वो नहीं है जहाँ एक इलेक्टेड वजीर आजम जेल में हो और एक फौज के सरबराह को ताउम्र जो है उनको इम्यूनिटी दी जाती है। ये वो मुल्क नहीं है, पाकिस्तान का कोई हक नहीं पहुंचता। जहाँ तक बिहार के मसले का आपने जिक्र किया, नहायत ही काबिल मजम्मत है। हमारी पार्टी के सीनियर लीडर रविंदर रैना साहब ने आपके प्रोग्राम में बड़े वाज़ेह अल्फाज में इस बात को मजम्मत भी की है और बिल्कुल की कहा है तो ये गलत है। और भी उन्होंने जो बातें कही वो एज फैक्टर भी है और एज भी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार एक सीजन पॉलिटिशियन रहे हैं हिंदुस्तान की सियासत में, उनको बड़ा एक इज्जत का मकाम दिया जाता रहा है बड़ा तबका की तरफ से, और जो उन्होंने हरकत की है मुझे लगता है कि वो अच्छी नहीं है, क्योंकि ये हरकत जो है ये हमारे संविधान की उल्लंघना है। और कोई भी आदमी जो एक बड़े पद है, फ्रिंज एलिमेंट्स की मैं बात नहीं करता हूँ, फ्रिंज एलिमेंट हर कम्युनिटी में हर तबका में होते हैं, उनकी अपने मसाइल एक सोच होती है जिस फ्रिंज एलिमेंट जो अपने सोच को लेकर बात करता है। लेकिन जो आदमी भारत के संविधान को की तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सुगंध लेता है, कसम उठाता है, भारतीय संविधान को सामने रख के ईश्वर के नाम पे वो हल्फ लेता है मैं भारत के आइन की पासदारी करूंगा, और वो इस किस्म की हरकत करे तो मुझे लगता है कि वो नहायत ही काबिल मजम्मत है। हर आदमी चाहे वो बड़े ओहदे पे हो या छोटे ओहदे पे हो, उसको ये चीज अपनी आंखों के सामने रखनी चाहिए कि मैं इस दफ्तर में जब दाखिल हुआ हूँ, इंटर हुआ हूँ, तो मैंने एक हल्फ उठाया है, मैं जिस मजहब को मानता हूँ उसी मजहब को हाजिर जान के, अल्लाह को हाजिर जान के, भाई गुरु को हाजिर जान के, ईश्वर को जान के कि मैं बिना मजहब मिल्लत हर तबका के साथ इंसाफ करूंगा और सबकी ऑनर एंड डिग्निटी का एहतराम करूंगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी बच्ची के चेहरे से निकाब उतारना एक वुमेन की डिग्निटी के साथ खिलवाड़ है, और ये नहायत ही काबिल मजम्मत है। हम इसमें चाहे वो हिंदू बच्ची हो या मुस्लिम बच्ची हो या क्रिश्चियन हो, हर आदमी को जो कानून के रूह से, जो हिंदुस्तान के आइन से, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो कानून बनाया, उस किताब में जो लिखा है, मेरे ख्याल से वो हमारे लिए सबसे मुतबर्रक किताब है और उस पर हमें अमल करना चाहिए। और जो उसकी अमल नहीं करता तो वो एक खिलवाड़ करता है, न सिर्फ वो आइन के साथ खिलवाड़ करता है बल्कि वो जिस मजहब को मानता है उसके साथ। जम्मू कश्मीर को लेकर बात करें सर, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब का बयान अक्सर जो है वो देखते हैं और लगता है कि हमदर्दियाँ और दूरियां जो है वो अब कम होती जा रही हैं। आप जम्मू कश्मीर के नायब सदर भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के डिस्कशन भी होती रहेंगी कि आने वाला फ्यूचर 4 साल का जो है वो किस तरह का बाकी रहा है, और क्या वो दूरियां अब मोहब्बतों में तब्दील हो सकती? देखिए, इसका बेहतर जवाब तो उमर अब्दुल्ला साहब ही दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बार अपना ये जवाब दिया है। चंद दिन पहले का उनका बयान जो है आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मरकज चाहे तो वो हमें घुटनों के बल ला सकता है। हमें मरकज ने घुटनों के बल नहीं लाया, हमें मरकज ने दिल खोल के पैसा दिया। वो बहुत मतलब उन्होंने जितने हदूद थी सारी मरकज की तारीफ में अपने 72 कसीदे जो है वो पढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि उमर साहब शायद अब बीजेपी की पॉलिसीज के काफी करीब हो चुके हैं। वो इलेक्शन में उनका एक दूसरा रवैया था, मोहब्बत में भी तब्दील हो सकता है। देखिए, कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट एनिमी और परमानेंट दोस्त नहीं होता। देयर इज नो परमानेंट एनिमी और परमानेंट फ्रेंड इन द पॉलिटिक्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द पॉलिटिक्स। ये हिस्ट्री है। उमर साहब बीजेपी की सरकार में वजीर खारजा रह चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि उमर साहब को बीजेपी से कोई इतनी ज्यादा नफरत है। वो तो बीजेपी के एक हिस्सेदार रहे हैं और हमेशा बड़े मिलजुल के, आज भी उनके रवाबत जो दिल्ली के साथ ही था। जेके विजन समिट के दौरान आपका जो बयान आपकी असेंबली हल्का को लेकर सवाल रखेगा, आपका एक बयान था कि डिग्री कॉलेज जो है वो वहाँ पर बनेगा और उसके बाद वहाँ के नौजवानों की उम्मीदें आपकी तरफ ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ये क्या ये जो बचा हुआ सरकार का वक्त है इसमें मुकम्मल होगा या फिर आप अपने ही दौर इक़्तिदार में इसको मुकम्मल? सियासत में अब कोई इतनी परमानेंट आप बात कह भी नहीं सकते कि किसका दोस्त कितनी देगा
इसका दौर कब खत्म हो जाएगा, ये चीजें तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन है कि वहाँ के बच्चे सफर कर रहे हैं और पिछले 8 सालों से बच्चे सफर कर रहे हैं। मैंने 2018 में वहाँ कॉलेज जाके दिया था। उसके बाद बहुत सारे निज़ाम यहाँ पे रहे, डीडीसी, बीडीसी, फिर 1 साल 1.25 साल से असेंबली भी हुई। तो मुझे लगता है कि मुझे जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हमारा इलाका पिछले 8 साल में बहुत पीछे चला गया है, बद से बदतर की हालत हो गई है। उससे पहले एक इलाके में डेवलपमेंट का फ्लो था, एक तामीर तरक्की नजर आती थी, कहीं एडिशनल डीसी बैठ रहे थे, कई नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन रहे थे, कहीं कॉलेज बन रहा था, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा था, कहीं स्कूल बन रहे थे, कहीं रोड बन रही थी, हायर सेकेंडरी स्कूल बन रहे थे, कहीं कैनाल बन रही थी। 70 साल से पुरानी बड़ी खास रोड बनी हमारे जो। तो मुझे लगता है कि पिछले 8 सालों में जो एक सिलसिला तामीर तरक्की का था वो रुक चुका है, और उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं कहूँगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसके जिम्मेदार वहाँ के जो मौजूदा नुमाइंदे हिसाब में उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो तमाम ओहदे उनके पास है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि सेक्रेटरी में बैठे थे, मुझे लगता है कि उनको जो एक अपना रोल अदा करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। हम परस्यू कर रहे हैं, हमने जमीन अप्रूव करवा दी है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस साल डिग्री बनेगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चौधरी जुल्फकार अली साहब जो जम्मू कश्मीर के साबिक यहाँ पर वजीर रह चुके हैं और साथ ही में भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के नायब सदर भी हैं, लेकिन बांग्लादेश से लेके हिंदुस्तान की बिहार की बात भी जो है वो ज़ेर गौर जो है वो लाई गई है, और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला उसका भी जो है वो जवाब आपने बाज़ाब्ता तौर पर सुना है। लेकिन असेंबली हल्का बुद्दल का भी जो है वो तज़किरा यहाँ पर हुआ है। उनका साफ कहना है कि जमीन जो है वो हमने अप्रूव करवा दी है और जल्द ही वहाँ के कॉलेज का जो है वो काम जल्द जो है वो शुरू होगा। लेकिन साथ ही में अपोजिशन लीडर को, वहाँ के मुतलका एमएलए को आड़े हाथों लेते हुए साफ ये भी कहा है कि वहाँ पर पिछले 8 साल से वो इक़्तिदार में है, चाहे सरपंच हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे डीडीसी हो, आज एमएलए हो, उनकी जिम्मेदारियां वो भी आवाम के सामने चल रहे हैं।